Yes, good morning student. Welcome to your mathematics class. Today we will start our chapter number 2, that is of relation and function. Okay. Relation and function. For this, firstly we will start with a term, that is this one. This is the ordered pair. Ordered pair. It is always in a specific order. In a specific order. Okay, that should be in a specific order, that A, B is not equal to B, comma A. And now first, second, what about the equality of two ordered pair? Equality of two ordered pair. Suppose if AB is equal to C and D, if their corresponding elements are equal, it means first element is equal to first one and the second element of ordered pair is equal to the second element. If A is equal to B and C is equal to D. Now we can't say that AB is equal to B, comma A. This is a pair. Now come to the Cartesian, about the next topic, that is of Cartesian product of two set. दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सपोज A is a set of 1, 2 and 3, B is a set of 4 and 5. How you will show their Cartesian product? Firstly, I want the Cartesian product of A and B, so you have to write A cross B. So write the element of A, that is 1, 2, 3, cross write the element of B set, that is 4, 5, and in the Cartesian product you will write, firstly you have to write the element of A and then write the element of B. Now in the Cartesian product the element should be in pair. Okay, 1, 4, 1, 5. Then take the second element of this one, 2, 4, 2, 5. Then take the third one, 3, 4, 3, 5. Now, as you can see that in A cross B, all the elements are in pair. Okay, so we can write in the general that A cross B have the element in X ordered pair X comma Y, such that first element belong to the first set and second element belong to the second set. Okay, now next question raises, what about B cross A? Write down the first set, that is 4, 5, and the second one is 1, 2 and 3. Now you tell me what will become in this set. You have 4, 1, 4, 2, 4, 3. Okay, then 5, 1, 5, 2 and 5, 3. Now you tell me that A cross B is equal to B cross A or not? Here, since 4, 1 is not equal to 1, 4, 1, 5 is not equal to 5, 1, so A cross B is not equal to B cross A. So this is all the condition that is related to the Cartesian product. First condition, that A cross B is not equal to B cross A. क्यों नहीं है इक्वल? Since their order pair are not equal. A B is not equal to B comma A. अगर पेयर इक्वल नहीं होंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होगा. There is only one condition. A cross B will be equal to B cross A if A and B are same. There is no change, then we can say they are equal. Come to the third set. If A is equal to A cross B will be equal to 5, मतलब A cross B खाली आएगा if A and B or both are 5. अगर A सेट में मैं कहूँ आपके पास है 1, 2 और B सेट में मैंने ले लिया नथिंग, there is a 5 सेट, आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, क्या लिखोगे आप? यहाँ तो कुछ है ही नहीं,
सेकंड सेट में तो नथिंग इज देयर, देन हाउ यू विल मेक द पेयर, नॉट पॉसिबल, सो इट इज ऑल्सो 5। तो इसीलिए कहा गया अगर ए क्रॉस बी 5 तब आएगा या तो ए 5 हो या बी 5 हो या दोनों 5 हो, तब हम कह सकते हैं बोथ देयर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज 5। इन द सेम वे ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट तब होगा या तो ए या बी या दोनों क्या हो, इनफाइनाइट सेट। अगर मैं ए में 1 2 3 4 n तक एलिमेंट लिखूं और बी सेट में मैंने लिख दिया 3, फिर आप बताओ 1 2 सारे, और इसमें से मैंने लिखा 3, तो आप कितने पेयर बनाओगे इसमें, 1 3 2 3 3 3, देन लॉट ऑफ एलिमेंट। तो अगर ए क्रॉस बी इनफाइनाइट तब आएगा या तो ए इनफाइनाइट हो या बी इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट वन, हाउ मैनी एलिमेंट इन द ए क्रॉस बी आर पॉसिबल। अभी हमने किया कि अगर हमने किसी ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालने हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल जब नंबर ऑफ ए एलिमेंट और नंबर ऑफ बी सेट के अपने एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दी। सपोज अभी हमने नीचे क्वेश्चन किया था, ए में अगर 1 2 3 है, बी में 4 5 है, तो ए क्रॉस बी में आपके कितने एलिमेंट आएंगे, कितने पेयर्स आएंगे, 1 4 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 5 आएगा, 3 5 आएगा, कितने पेयर आए। नाउ यू कैन सी दैट दे आर द 6 पेयर्स। ओके, सो ए क्रॉस बी में हमारे 6 पेयर तब आए जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई किए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2, तो 3 × 2 देन यू कैन गेट द 6। क्लियर है। अगर मैं डायरेक्टली कोई बोल दे कि ए सेट में 10 एलिमेंट है और बी सेट में 5 एलिमेंट है, बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, देन यू कैन मल्टीप्लाई 10 × 5, दैट इज 50 एलिमेंट शुड बी देयर इन ए क्रॉस बी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ यू विल शो देयर ग्राफ। ओके, आपको अगर ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट करनी है, ए सेट में मान लो आपके पास है 1 2 और 3, बी सेट में है 4 और 5, आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखाएंगे ए क्रॉस बी में 1 4 वो लिखा हुआ सब, ठीक है। तो अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखाना है। अगर पहले ग्राफिकल दिखाना है तो मैंने यहाँ ए सेट के एलिमेंट लिखने हैं, यहाँ बी के। ए सेट में है 1 2 और 3 और बी सेट में है 4 और 5। तो पहला बना हमारा 1 4, ये रहा 1 4, दूसरा हमारा 1 5, ऐसे ही एक और बनेगा यहाँ 2 4, यहाँ बनेगा 3 4, सब आ रहा है, वहाँ दिख रहा है आपको, क्लियर है। और यहाँ पे ऐसे ही 2 5, यहाँ 3 5, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करती हूँ, विच इज द इम्पोर्टेंट डायग्राम फॉर द ए क्रॉस बी। एरो डायग्राम के लिए आपको फर्स्ट सेट को यहाँ दिखाना पड़ेगा, सेकंड सेट को यहाँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो क्लियर है। ए में आपके मान लो एलिमेंट है 1 2 और 3, बी में है 4 और 5, तो 1 4 का पेयर बना, 1 5 का बना, 2 4 का बना, एरो इस तरफ भी जाएंगे, 2 5 का बना, 3 4 का बना और 3 5 का बना। ओके, सो दिस इज द एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज आपको दे रखी हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है, अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी हो तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। जैसे अगर इसको इसके साथ लिखोगे तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल, क्लियर है। सेकंड, अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो, देन द सेम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास ऐसे बहुत सी आइडेंटिटीज दे रखी है हमें। अगर ए क्रॉस बी
यूनियन या इंटरसेक्शन है सी क्रॉस डी की, तो आप कैसे करोगे, पहले आप फर्स्ट क्रॉस का फर्स्ट से ले लो इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ओके, दो सेट बन जाएंगे इस तरह से आपके। इसी तरह से बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। ओके, यू कैन ट्राई। नाउ कम टू द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एक्सरसाइज, anything you can take. I am taking the example one. First example where the two pairs are equal. First one is x by 3 plus 1 by 5 minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 minus 1 by 2. They are the two pair, left side pair or right side pair. They both be equal by the equality of two pair. Okay, by the definition of equality of ordered pair. First one will be equal to the first one and second one is equal to the second one, and you can get your x and y. 5 by 3 minus 1, then you have 2 by 3, 3 will be cancelled and x is equal to 2. In the same way you can get your y. अब a सेट आपको दे रखा है अगर 1, -1, तो a क्रॉस a, क्या ये तीनों का भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 का किया, 3 का नहीं किया। अगर 3 का आएगा तो 3 में कैसे एलिमेंट आएंगे? a क्रॉस b क्रॉस c निकाल रहे हो तो आपके एलिमेंट ऐसे आएंगे a b c, 3 के पेयर वाले आएंगे, जहाँ पर पहला a में, दूसरा एलिमेंट b में और तीसरा c का बिलोंग करेगा। अब यहाँ तीनों सेम है तो पहले मैं a क्रॉस a निकालूंगी, फिर तीसरा करूँगी। a क्रॉस a में क्या आएगा? 1, -1 मल्टीप्लाई 1, -1। अब इनकी करनी है तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में पेयर एलिमेंट आएंगे 1 की 1 से, की 1 की -1 से, फिर -1 की 1 से, फिर -1 की -1 से। क्लियर है? 4 एलिमेंट आ गए, 4 ही आ गए, फिर 2 इसके 2 2 4। अब तीसरा लेना है तो a क्रॉस a का ये है, इसी के साथ तीसरा मल्टीप्लाई करना है, तो इस सेट को हमें मल्टीप्लाई करना है तीसरे सेट से, दैट इज 1 -1। मैंने एक ए और लगा दिया दोनों साइड, ठीक है। अब इसकी कर रहे हो तो पहले इस सेट की इसके साथ, फिर इसके साथ। पहले देखो, अब मैं इसमें 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है, नहीं 8 एलिमेंट आएंगे, 2 2 4 4 2 8। क्लियर है? 8 एलिमेंट आएंगे। पहला एलिमेंट इसकी इससे साथ करी तो 1 1 1, फिर 1 1 की अगर मैं -1 से करूँ तो 1 1 -1। डोंट चेंज द ऑर्डर, 1 1 ही आ रहा है पहले, फिर लास्ट में ही आ रहा है तो लास्ट में लिखना। अब मैं दूसरे की उठा रही हूँ। क्लियर है? 1 -1 फर्स्ट वन, 1 -1 सेकेंड वन। क्लियर है? फिर अब ये इसके हो गए। अब इस सेकंड वाले अगले वाले को उठाओ, -1 1 वाला पेयर उठाया, उसकी 1 से की, लास्ट में 1 आया, उसी की -1 1 वाले की -1 से की तो ये आया। फिर ऐसे ही लास्ट वाला उठाया तो -1 -1 1 -1 -1 दे आर द 9 एलिमेंट इन a क्रॉस a। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर आपको दिखाना है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुकी हूँ। क्लियर है? कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, a cross b is already given, that is a1 b3 a3, okay, a3 b1 a2 b2। तो ए सेट में क्या क्या आएंगे? हमें पता है ए सेट में वो एलिमेंट होते हैं जो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, दैट इज ओनली फर्स्ट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है हमारे पास ए बी, रिपीटेशन मैटर नहीं करता तो ए बी। और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो सेकंड पे हैं? 1 3 2 1 2 3। ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि ये सेट है बी, तो 1 2 1 2 और 3। हमें ए और बी फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है ए में है आपके पास 1 2 3 4, एस में आपको दे रखा है ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ए डिवाइड्स बी, इट मीन्स बी इज डिवाइडेड बाय ए। आपका बी पूरा ए से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, बी ऊपर आएगा
दैट इज न्यूमरेटर पार्ट एंड ए से डिवाइड करना है, वो ऐसा हमने डालने हैं। एक्चुअली ए क्रॉस अगर ए भी हमारा ए सेट में है, बी भी ए सेट में, तो ये ए क्रॉस ए के सेट में से आया हुआ है। तो अभी हम ये मन में करना है ए क्रॉस ए, उसमें से जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हम रखेंगे। देखो ए क्रॉस ए करेंगे तो 1 1 आएगा, 1 डिवाइड्स 1 तो आएगा 1 2 आएगा। अगर मैं इसको दोबारा ये लिख लूँ 1 2 3 4 लिख लिया, अब 1 1 आ रहा है, डिवाइड कर रहा है 1 2 1 2 को डिवाइड कर रहा है 1 3 डिवाइड कर रहा है 1 4 यस 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये पेयर आए 2 1 नहीं 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा, 2 2 आएगा, 2 3 नहीं कर रहा, 2 3 को डिवाइड 2 4 यस 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो आएगा, 3 1 को डिवाइड नहीं कर रहा नहीं आएगा, 3 2 को डिवाइड नहीं कर रहा नहीं आएगा, 3 3 को डिवाइड कर रहा है इट विल कम 3 4 नहीं आएगा, फिर 4 1 को डिवाइड कर रहा है नहीं, 4 2 को डिवाइड कर रहा है नहीं, 4 3 को डिवाइड कर रहा है नहीं आएगा, 4 4 को डिवाइड कर रहा है यस आएगा। तो ये वो पेयर्स हैं ए क्रॉस ए के जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसी को रिलेशन बोलते हैं, दिस इज द रिलेशन। एंड ये जो भी हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन जिसमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है, आप सारा एक क्रॉस एक एलिमेंट को इसमें नहीं डाल सकते, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करा के डालना होता है, दिस इज नोन एज द रिलेशन। क्लियर है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन हमेशा ए क्रॉस ए का हमारा सबसेट होगा। अगर यहाँ ए क्रॉस ए है, ये भी ए का है ना, तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर ये बी से बिलोंग कर रहे होते तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6, जहाँ पर आपको ए दे रखा है दैट इज ए बी, बी दे रखा है 2 3 5 6 7 और सी दे रखा है 5 6 7 8 एंड 9। आपको क्या शो करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्टली ए आपका है ए बी का क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बताइए दैट इज कॉमन इन बी एंड सी, दैट इज 5 6 7, ये 3 एलिमेंट है, तो 5 6 7 व्हाट विल कम इन ए क्रॉस बी, A5 A6 A7 6 B5 B6 B7. Okay, they are the 6 element, 2 into 3, that is 6 element should be there, that is A5 A6 A7 B5 B6 B7. They are the 6 elements in the Cartesian product of these set. Come to the next question. Okay. इसी तरीके से आप सारे दिखा सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर मैंने 9 ले लिया एग्जाम्पल, ए आकर अगर 1 2 3 है, बी आपका दे रखा है 2 3 और 4 और सी दे दिया आपको 1 3 एंड 4 एंड डी इज ऑलरेडी गिवन 2 4 एंड 5। You have to show that A cross B intersection C cross D that is equal to A cross C मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन डी। ओके, आपको ये आइडेंटिटी वेरीफाई करके दिखानी है। तो ए क्रॉस बी बताओ क्या क्या आएगा। पहले मैं ये कर रही हूँ, ए क्रॉस बी निकाल रही हूँ। आपका आएगा 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। उसके बाद आपके पास सी क्रॉस जी क्या आता है वो फाइंड आउट कर दीजिए। सी क्रॉस जी में आएगा 1 2 1 4 1 5 3 2 3 4 3 5 4 2 4 4 4 5। क्लियर है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में इसका और इसका कॉमन लाना था, ये रहा हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको इन दोनों का कॉमन देखना है, यानी कि इंटरसेक्शन देना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी। तो वो पेयर डालिए जो दोनों में कॉमन है। 1 1 सेम है तो डाल दिया 1 2 1 3 और कहीं नहीं दिख रहा, 1 4 नहीं दिख रहा, 1 4 है, 1 4 सेम है, डाल दिया 1 4। क्लियर है। 1 3 नहीं था,
2 2 नहीं है, 2 3 is there any 2 3? No. 2 4 common? No. 3 2 is there in both. 3 2 3 3 is not there. 3 4. तो ये 4 पेयर आए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में ये इंटरसेक्शन सी निकालना है. इट मीन्स कॉमन ऑफ बोथ. जहाँ पर 1 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 1 3 क्रॉस बी और सी. बी और डी में कॉमन क्या है? 2 एंड 4, तो 2 और 4 आएगा. अब इसके प्रोडक्ट करोगे तो 1 2 1 4 3 2 3 4. यही 4 पेयर आएंगे. तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गई, वेरीफाई हो गई. क्लियर है. एक लास्ट क्वेश्चन जहाँ पर आपको दे रखा है, कहता है ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं. इट मीन्स 9 पेयर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. क्लियर है. 9 पेयर हैं जिसके आपको 2 पेयर दे रखे हैं, -1 और 0. दूसरा है 0 और 1. कहता है ए फाइंड आउट कीजिए. अब पहले ए में क्या होंगे? पहले एलिमेंट पहले ए के होते हैं, दैट इज -1 0. और दूसरा जो है वो दूसरे ए के होंगे, दैट इज 0 1. दोनों ए में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इट मीन्स ये दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके एलिमेंट बनेंगे -1 0 और 1. क्लियर है. तो इसमें 3 एलिमेंट है. अगर 3 एलिमेंट है और 3 इसमें भी 3 होंगे, तभी मल्टीप्लाई में 9 एलिमेंट आएंगे. ओके. अब ए सेट ये हो गया. अब हमें ए क्रॉस ए निकालना है. तो ए अगर यही है तो दूसरा ए भी यही है. अब इनका क्रॉस निकालोगे तो इनके अलावा जो भी बचेंगे वो हमने डालना है. -1 यहाँ आएगा. ये रहा हमारा एक एक्स्ट्रा जो -1 यहाँ आएगा. -1 0 ऑलरेडी आ चुका है. -1 1. एक और आ गया 0 -1 0 0 0 1 ऑलरेडी आ चुका है. क्लियर है. 1 -1 1 0 और एक लास्ट रह गया 1 1. क्लियर है. ये हमारे वो बचे हुए एलिमेंट 7 एलिमेंट्स थे जो एक क्रॉस ए में इनके अलावा लाई करते थे. ओके. नाउ यू हैव टू ट्राई योर 2.1 एक्सरसाइज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.